गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सोलेनेसी फैमिली शुरू की थी। सोलेनेसी फैमिली में हम लोगों ने टोटल कितने जेनेरा, कितने स्पीसीज होते हैं, इंडिया में कितने मिलते हैं और महाराष्ट्र में कितने मिलते हैं, ये देखा था। उसके बाद में सोलेनेसी फैमिली की सिस्टमेटिक पोजीशन हम लोगों ने स्टडी किए थे। In this systematic position, we studied that the Solanaceae family comes under division Phanerogames and its common character is flowering plants, while it belongs to class Dicotyledons. In Dicotyledons, seeds with two cotyledons, taproot system, reticulate venation, and flowers are pentamerous. The Solanaceae family belongs to subclass Gamopetalae, in which the petals are united, while it belongs to series Bicarpellate. In this, ovary is usually superior, carpels usually two, means bicarpellate. Stamens alternate with the corolla lobes and equal in number. It belongs to family order Polymonales. In Polymonales, the character of Polymonales is ovary bicarpellary, syncarpous, and superior. This is about the systematic position of family Solanaceae. The common plants which occur in our area from Solanaceae are Petunia flora, Solanum xanthocarpum, Solanum nigrum, Solanum tuberosum, Solanum melognina, Solanum forex, Solanum indicum, Lycopersicum esculentum, Dhatura inoxia, Dhatura metal, Capsicum pritsensis, Capsicum annum variety grossa, Castrinum nocturnum, Whitenia somnifera, Nicotiana tabacum, Hyoscyamus niger, and Atropa belladonna. These are few common plants which occur in our area very commonly are listed at here, and the plants which shows a great medicinal value are also listed at here. The photographs of these plants are: this is Petunia, this is Solanum xanthocarpum, this is Solanum nigrum, this is Solanum tuberosum, Solanum melognina, Solanum forex, Solanum indicum, Dhatura stromonium, Dhatura inoxia, Dhatura metal, Lycopersicum esculentum, Capsicum princensis, Capsicum annum variety grossa, Castrinum nocturnum, Whitenia somnifera, Nicotiana tabacum, Hyoscyamus niger, and Atropa belladonna. These are the plants or the images of the plants which occur in our area, which shows a very great medicinal value as well as food and economic value also. The family or the plant belong to this family are distributed in temperate regions. This family is very more common in America and South America, while in other parts of the world it is occur in temperate regions only. The habit of this family is erect, climbing herbs, shrubs, or small trees. Most of the plants belongs to the Solanaceae family are herbs and shrubs. Very rarely small trees are occur in this family. Means in this family only herbs and shrubs are very common. The plant which occur in our area from Solanaceae family, they shows herbs and shrub habit only. Small trees are not in our area. Atropa belladonna, the last one in our index, last one plant in our list, shows small tree habit,
but this plant is not present in our area. Due to its economic and medicinal value, we included this plant in our list. The root, taproot system is present in this family, as this family belongs to dicotyledon. The character of dicotyledon is taproot system, so this family also shows taproot system. The roots are also important. Many plants shows very important medicinal activity or medicinal property of this family. Leaves. Now the leaves of this family are very interesting. आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने धतूरा का प्लांट शायद देखा होगा. ये जो फैमिली है इसमें लीव्स अल्टरनेट होते हैं, मगर इन्फ्लोरेसेंस जहां पर फ्लावर आता है जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, वहां पर ये अपोजिट फाइलोटैक्सी बताता है. यानी एक ही प्लांट में दो टाइप की फाइलोटैक्सी होती है. जो फैमिलीज आप लोग पढ़ रहे हैं वो फैमिलीज में सिर्फ सोलेनेसी एक ऐसी फैमिली है कि जिसमें एक ही प्लांट में दो टाइप की फाइलोटैक्सी दिखाई देती है, जैसे कि अल्टरनेट और अपोजिट. यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो पहला पिक्चर है, ये पहले पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लावर अराइज हो रहा है, यानी ये एक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है. और ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के पास में के जो ये दोनों लीव्स अराइज हो रहे हैं, ये दोनों लीव्स अपोजिट डायरेक्शन में है. और जहाँ पर फ्लावर अराइज नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लीव्स यहाँ पर एक है और दूसरा उसको अल्टरनेट आया हुआ है, ऊपर की ओर है. यानी अल्टरनेट जहाँ पर फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस नहीं होता है वहाँ पर फाइलोटैक्सी अल्टरनेट होती है, और जहाँ पर फ्लावर अराइज होता है यानी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जहाँ पर होता है वहाँ पर फाइलोटैक्सी जो होती है वो अल्टरनेट होती है. एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which type of phyllotaxy is present in family Solanaceae. आपका आंसर पूरे सेंटेंस में होना चाहिए. In vegetative region it is alternative and becoming opposite in at the inflorescence site. और जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसा भी लिखे तो चलता है, मगर ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा 1 या 2 मार्क के लिए, तो ये ख्याल में रखना है. एक्सटिप्यूलेट यानी ये लीव्स जो होते हैं ये बिना किसी स्टिप्यूल के होते हैं. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये फिगर में यहाँ पर कहीं पर भी लीव्स के नीचे स्टिप्यूल्स यानी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है. जैसे कि मालवेसी में हमने स्टडी किया था, लीफ के नीचे स्टिप्यूल्स हमें दिखाई दिए थे, यहाँ पर मगर वैसे स्टिप्यूल्स नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए इसे एक्सटिप्यूलेट कहा जाता है. अब ये जो लीफ होता है, ये लीफ में ना तो कहीं पर लेमिना या मिडरिप कोई भी डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए इसे एंटायर लीफ कहेंगे. कहीं पर भी डिवाइडेशन नहीं हो रहा है और सिंपल लीफ कहेंगे. फिर से लेमिना और मिडरिप में कहीं पर भी डिवाइडेशन नहीं दिखाई देता है इसलिए इसे सिंपल लीफ कहेंगे. दोनों में से अगर कहीं पर भी डिवाइडेशन अगर होते रहता था तो उसे हम कंपाउंड लीफ कहते थे, मगर सोलेनेसी फैमिली में सिंपल लीफ प्रेजेंट होता है, यहाँ कंपाउंड लीफ नहीं होता है. तो ये कैरेक्टर्स हम लोग ख्याल में रखेंगे कि वेजिटेटिव रीजन में लीव्स अल्टरनेट होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस के रीजन में अपोजिट फाइलोटैक्सी होती है. एक्सटिप्यूलेट लीव्स होते हैं, एंटायर और सिंपल होते हैं. अब ये फैमिली में बहुत सारे प्लांट्स में एक कैरेक्टर दिखाई देता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा. यहाँ पर ये जो थर्ड फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लीफ को एक नॉच दिखाई देगा आप लोगों को. ये जो लीफ का नॉच है, ये नॉच जो है ये पूरे प्लांट के लीफ में दिखाई देता है. ये ऐसा नॉच जो होता है ये बहुत कम प्लांट्स में दिखाई देता है या बहुत कम फैमिलीज में दिखाई देता है. तो ये फैमिली का एक कैरेक्टर बन जाता है
कि जो दूसरे में नहीं दिखाई देता मगर यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसका जो लीफ का एपेक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लीफ का एपेक्स पॉइंटेड एपेक्स होता है, हल्का सा पॉइंटेड होता है, और इसकी जो मार्जिन है ये मार्जिन इवन मार्जिन होती है, यानी एंटायर मार्जिन होती है। ये मार्जिन में कहीं पर भी नॉचेस नहीं दिखाई दे रहे। अब फोर्थ वाला फोटोग्राफ देखेंगे तो ये मार्जिन में आप लोगों को इस तरीके से जिगजैग मैनर में या वेवी मैनर में दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये वेवी मार्जिन होती है, यहाँ पर एंटायर मार्जिन होती है, यानी वेवी और एंटायर ऐसे दो टाइप की मार्जिन ये फैमिली में दिखाई देती है। ये हुआ लीफ के बारे में। अब इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, ये इन्फ्लोरेसेंस एग्जैक्टली जैसा हम लोगों ने मालवेसी फैमिली में स्टडी किया था वैसा ही इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर दिखाई देता है। अब कैसा होता है कि ये टिपिकल एक्सिलरी साइम होता है। ये टिपिकल एक्सिलरी यानी क्या होता है, ये लीफ के एक्साइल में से आता है, लीफ के बेस में से आता है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, इसलिए इसे एक्सिलरी कहा जाता है। एक्साइल यानी बेस में से आता है। और ये एक्सिलरी होने के साथ साथ हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये एक स्टॉक के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावर अराइज होता है। ये सभी फैमिली में के मोस्ट ऑफ फ्लावर्स प्लांट्स में ये ऐसा दिखाई देता है कि एक स्टॉक के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावर आता है। जैसे कि हमने हिबिस्कस के फैमिली में भी स्टडी किया था कि सिंगल स्टॉक के ऊपर सिंगल फ्लावर आता है, जिसे हम लोग सॉलिटरी कहते हैं, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। मैंने उस वक्त भी कहा था सॉलिटरी का डिक्शनरी मीनिंग होता है अकेला, सिंगल। तो एक स्टॉक के ऊपर सिंगल फ्लावर अराइज होता है, इसलिए इसे सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। यह है टिपिकल एक्सिलरी साइम, सॉलिटरी साइम, ऐसा इसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है। ये हुआ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो फ्लावर है, ये फ्लावर अब हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो फ्लावर है यूजुअली पेडिसिलिएट, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, रेगुलर, हाइपोगाइनस, कंप्लीट, ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स आर एब्सेंट। अब इसका जो फ्लावर है, ये फ्लावर को अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो एक एक कैरेक्टर में आप लोगों को बताता हूं। ये जो फ्लावर है, ये पहले फोटोग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, ये एक छोटे से स्टॉक के ऊपर अराइज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है या पेडिसिल जिसे कहा जाता है, ये पेडिसिल के ऊपर ये फ्लावर अराइज होता है, इसलिए इसे कहा जाता है पेडिसिलिएट फ्लावर। हमने कैरेक्टर स्टडी करते वक्त देखे थे, ये दो टर्मिनोलॉजी होती है। फ्लावर या तो छोटे से या लंबे से स्टॉक के ऊपर अराइज होता है, या तो बिल्कुल ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस को अटैच होता है। अगर ये स्टॉक प्रेजेंट है तो फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, अगर एब्सेंट है तो उसे सेसाइल कहते हैं। यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली में सेसाइल फ्लावर नहीं होता है, ये पेडिसिलेट फ्लावर होता है। अब ये जो सेकंड फोटोग्राफ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बीच में हमें ओहोरी दिखाई दे रही है, यानी ये गाइनोशियम है, और उसके इर्द गिर्द यहाँ पर ये एंड्रोशियम प्रेजेंट है, यानी स्टैमेंस प्रेजेंट है। अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों सेक्सेस एक ही फ्लावर में अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो फ्लावर को कहा जाता है बायसेक्सुअल। बाय का मतलब होता है टू, दोनों सेक्सेस एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहा गया है बायसेक्सुअल। अब एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी फ्लावर को किसी भी प्लेन में अगर कट करते हैं तो उसके दो इक्वल पार्ट हमें मिलते हैं। ये जो फ्लावर है धतूरा का या सोलेनेसी में जितने भी फ्लावर मिलते हैं, उन्हें किसी भी एंगल से अगर हम कट करते हैं तो हमें दो इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, इसे कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। फिर रेगुलर आता है। रेगुलर यानी सेम वही टर्मिनोलॉजी होती है, फ्लावर के दो हिस्सों में अगर उसे डिवाइड करें या बांटे तो दो इक्वल पार्ट्स होते हैं। अब हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब होता है ओहरी के नीचे से बाकी दूसरे फ्लोरल पार्ट्स आते हैं। अब यहाँ पर सेकंड फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि ये ओहरी है,
और ये ओहरी के नीचे से यहाँ से कैलिक्स आ रहा है, ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे जो करोला है वो भी ओहरी के नीचे से ही आ रहा है, और एंड्रोशियम है, ये एंड्रोशियम भी नीचे से ही अराइज होता है। यानी ओहरी के नीचे से कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम अराइज होते हैं। ये कंडीशन को कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर या सुपेरियर ओहरी। यानी सोलेनेसी फैमिली में हाइपोगाइनस फ्लावर होता है या सुपेरियर ओहरी होती है। अब इसे कंप्लीट फ्लावर भी कहा जाता है। कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है फ्लावर में टोटल 4 होल्स होते हैं, हमें पता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। चारों के चारों अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो उसे कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, और चारों में से एक या दो कोई भी अगर एब्सेंट होता है तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। अब सोलेनेसी फैमिली में कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों के चारों प्रेजेंट होते हैं, एक ही फ्लावर में होते हैं, इसलिए इसे कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। ये फ्लावर में ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट होते हैं। जब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो फ्लोरल फॉर्मूला में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल ये फ्लावर में एब्सेंट होते हैं, इसलिए हमें वहां पर ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल का सिंबल नहीं लगाते आएगा, और बाइसेक्सुअल का सिंबल वहां पर लगाना पड़ेगा, हमें एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला डिस्क्राइब करते वक्त एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल लगाएंगे, फिर बाइसेक्सुअल का सिंबल लगाएंगे। ये दोनों सिंबल वहां पर हमारे लिए जरूरी है, और यहाँ पर ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट है तो ये दोनों सिंबल वहां पर नहीं आएंगे। अब फ्लोरल फॉर्मूला में के 2 सिंबल हमने कंप्लीट किए। सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल आएगा, फिर आएगा बाइसेक्सुअल का। अब इसके बाद में आता है कैलिक्स। फ्लावर का ये डिस्क्रिप्शन के बाद में हम लोग कैलिक्स स्टडी करेंगे। ये इसमें का जो कैलिक्स होता है, टोटल 5 कैलिक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी 5 सेपल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सेकंड फोटोग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का जो है ये कैलिक्स है, और ये टोटल 5 नंबर में है। 3 तो हमें सामने से दिखाई दे रहे हैं और पिछले साइड में 2 होते हैं। ऐसे टोटल 5 कैलिक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये सभी के सभी कैलिक्स आपस में यूनाइट हुए हैं, फ्यूज हो गए हैं आपस में। यहाँ देख सकते हैं हम लोग एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, सभी यूनाइट होने के वजह से। ये यूनाइट है इसलिए इसे हम लोगों ने लिखा है गैमोसेपेलस। अब इसका जो कैलिक्स है ये ऊपर की ओर अगर हम देखते हैं तो ये जो कैलिक्स है ये टूथड कैलिक्स बोलते हैं इसे, टीथ के जैसा यानी दांतों के जैसा हल्का सा दिखाई देता है, इसलिए इसे टूथड कैलिक्स कहा जाता है। अब ये फैमिली में एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कैलिक्स बताता है। यहाँ पर कैलिक्स परसिस्टेंट कैलिक्स बताया जाता है। परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब होता है बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद और फ्रूट फॉर्मेशन होते वक्त कैलिक्स नीचे गिर जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द कैलिक्स फॉल डाउन। दिस कंडीशन इज नोन एज डेसिडियस कैलिक्स। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद और फ्रूट फॉर्मेशन होने के बाद भी कैलिक्स फ्रूट को अटैच रहता है, इसे कहा जाता है परसिस्टेंट कैलिक्स। ये परसिस्टेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए, परमानेंट। ये कैलिक्स फ्रूट को परमानेंटली अटैच होता है, इसलिए इसे परसिस्टेंट कैलिक्स कहा जाता है। पहले फोटोग्राफ में मैंने बताया है, यहाँ पर ये सोलेनेसी फैमिली का फ्रूट है, और ये फ्रूट के ऊपर यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये कैलिक्स आखिरी तक इसे जुड़ा हुआ है। इवन ये फ्रूट ड्राई हो जाएगा, ये फ्रूट फूटेगा, फूटने के बाद में इससे सीड्स बाहर निकल जाएंगी,
सीड्स बाहर निकलने के बाद भी ये कैलिक्स ये फ्रूट के पार्ट को यहाँ पर अटैच होता है। ऐसा जो कैलिक्स होता है जो फ्रूट फॉर्मेशन होने के बाद भी फ्रूट को अटैच होता है, ऐसे कैलिक्स को कहा जाता है परसिस्टेंट कैलिक्स। ऐसे परसिस्टेंट कैलिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखाई देते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों के मेमोरी को चेक करना चाहूंगा। आप लोगों ने परसिस्टेंट कैलिक्स के कोई एग्जाम्पल देखे हैं क्या? खुद को अनम्यूट कीजिए और आंसर दीजिए। ऐसा कैलिक्स जो फ्रूट फॉर्मेशन होने के बाद भी फ्रूट को अटैच होता है। फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रोज। रोज, ओके। और भिंडी। भिंडी में, हाँ ओके, चलो ठीक है। और टोमेटो। गुड, टोमेटो। थोड़ा आवाज जोर से बोलो, टोमेटो नहीं खाया क्या? और वांगी। वांगी। अरे जोर से बोलो बेटा, मुझे सुनाई नहीं दे। चिली। चिली, वेरी गुड। और ब्रिंजल। ब्रिंजल, वेरी गुड। और पाइनएप्पल खाया है किसी ने? यस सर। तो पाइनएप्पल के नीचे ग्रीन कलर का कैलिक्स होता है ना? यस सर। ओके, और कोई याद आ रहा है? ओके, इतने सारे काफी है अपने लिए। तो ये परसिस्टेंट कैलिक्स ये फैमिली का एक बहुत ही अहम ऐसा कैरेक्टर होता है जिसे हम लोग आइडेंटिकल कैरेक्टर कहते हैं। ये हुआ ये फैमिली का कैलिक्स। अब जब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो कैलिक्स के लिए हमें लिखना पड़ेगा के का सिंबल, फिर 5 का आंकड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 सेपल्स होते हैं यहाँ पर, और इसके इर्द गिर्द हमें ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये यूनाइटेड है, यानी गैमोसेपेलस कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब तक फ्लोरल फॉर्मूला में हमने क्या क्या देखा? एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल लगाएंगे, फिर बाइसेक्सुअल का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद में कैलिक्स का के लिखेंगे, उसके बाद में 5 लिखेंगे क्योंकि 5 सेपल्स है, और उसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि गैमोसेपेलस कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये कैलिक्स के कैरेक्टर हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कैलिक्स में जो एस्टिवेशन होता है, ये एस्टिवेशन वॉल्वेट होता है। अब ये वॉल्वेट एस्टिवेशन क्या होता है ये हम सब लोगों को पता है, हमने मालवेसी में भी स्टडी किया। मालवेसी का जो कैलिक्स था वो वॉल्वेट एस्टिवेशन था, और इपिकैलिक्स भी उसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन बताता था, जहां पर कैलिक्स के दोनों बॉर्डर्स कहीं पर भी आपस में नीचे ऊपर नहीं होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं। ऐसे सिचुएशन को हम लोग वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। अब आता है करोला। करोला जो है ये फैमिली में टोटल 5 पेटल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि पांचों के पांचों पेटल्स आपस में यूनाइट हो गए हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये यूनाइट होने के वजह से एक टिपिकल ऐसा स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होता है जिसे फनेल शेप्ड कहा जाता है। फनेल के जैसा दिखाई देता है। हम केमिस्ट्री लैब में जो फनेल यूज करते हैं वो फनेल के जैसा यूज होता है। ये पहले रॉकेल भरने के लिए घर में फनेल का यूज होता था, वो फनेल के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे फनेल शेप्ड करोला कहा जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कहीं कहीं पर ये रोटेट के जैसा होता है। पहले फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये सभी करोला आपस में यूनाइट है, और इसका ओपनिंग सीक्वेंस ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रोटेट के जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे रोटेट कहा जाता है। और कुछ जगह पर ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, यानी फनेल शेप्ड
रोटेट या ट्यूबुलर, ऐसे अलग अलग शेप में ये करोला प्रेजेंट होता है। और इसका एस्टिवेशन जो होता है वो ट्विस्टेड होता है। यानी अब करोला को फ्लोरल फॉर्मूला में लिखते वक्त हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। करोला के लिए हम सी का सिंबल लिखेंगे, 5 पेटल है इसलिए 5 नंबर लिखेंगे, और पांचों पेटल्स आपस में यूनाइट हो रहे हैं इसलिए इसे ब्रैकेट में रखेंगे। करोला 5 पेटल्स और यूनाइटेड है इसलिए इसे ब्रैकेट में रखा जाएगा। ये फनेल शेप्ड करोला ये फैमिली का एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टर है। बाकी दूसरे भी शेप होते हैं मगर इतने ज़्यादा प्लांट्स में नहीं दिखाई देते। मोस्ट ऑफ प्लांट में फनेल शेप्ड करोला दिखाई देता है। हम लोग प्रैक्टिकल में जो प्लांट स्टडी करने वाले हैं धतूरा, उसमें फनेल शेप करोला ही दिखाई देता है। करोला में एस्टिवेशन होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में हमें पता है कि एक बॉर्डर बाहर होती है और एक बॉर्डर अंदर होती है। हर पेटल ऐसी ही अरेंजमेंट बताता है, वन बॉर्डर ओवरलैपिंग एंड वन बॉर्डर ओवरलैप्ड, यानी वन बॉर्डर एट आउटर साइड एंड वन बॉर्डर ऑफ पेटल इज एट इनर साइड। और सभी पेटल्स में ऐसे अरेंजमेंट होने की वजह से एक ट्विस्ट जैसा अपीयरेंस फ्लावर को मिलता है, इसलिए इसे ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहा जाता है। अब फ्लावर के बाद में थर्ड होल आता है फ्लावर का, जिसे एंड्रोशियम कहा जाता है। फर्स्ट होल था कैलिक्स, सेकंड होल था करोला, अब थर्ड होल है एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पेंटामेरस फ्लावर है। हमने पहले ही देखा था कि डाइकॉट में पेंटामेरस सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर कैलिक्स भी 5 है, करोला भी 5 है, तो अब एंड्रोशियम भी 5 ही रहने वाले हैं। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं सोलेनेसी में कि जिनमें 99% प्लांट में 5 स्टेमेंस दिखाई देते हैं। बहुत रेयरली कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनमें 4 स्टेमेंस होते हैं, मगर ओरिजिनली यहाँ पर स्टेमेंस 5 ही होते हैं। जैसे कि ये स्केच में फर्स्ट वाला जो स्केच है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ओहरी है और ओहरी के नीचे से यहाँ पर ये स्टेमेंस अराइज हो रहे हैं। तो ये ओहरी के नीचे के पार्ट का अगर सेक्शन लेते हैं ना हम लोग, तो ये सेक्शन में हमें टोटल 5 स्टेमेंस ही दिखाई देते हैं हर फ्लावर में, मगर कुछ कुछ प्लांट में ऊपर की ओर सिर्फ 4 स्टेमेन दिखाई देते हैं। यानी इवोल्यूशन जब होता है, यानी प्लांट खुद को जब इवॉल्व करते हैं, इवोल्यूशन की प्रोसेस जब नेचर में होती है, तो इवोल्यूशन का एक सिंपल सा रूल है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर, यानी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर से सिंपल कैरेक्टर्स की ओर जाना, उसे इवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि हम पहले बंदर थे, हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे बाल थे, हमारी पूंछ भी थी, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो हमें बंदर कहलाते थे। ये सभी कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हुए। पर फिर नेचर में हमारी जरूरत के हिसाब से हम कुछ कैरेक्टर्स कम कम करते गए। जैसे हमारी पूंछ निकल गई, हमारे स्किन के ऊपर से बाल निकल गए, और बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो बंदर में दिखाई देते थे मगर आज हमारे में नहीं दिखाई देते। यानी इवोल्यूशन में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स से लेकर सिंपल कैरेक्टर की ओर बढ़ना जिसे कहते हैं, उसे इवोल्यूशन कहा जाता है। वैसा ही इवोल्यूशन प्लांट्स में भी होता है। यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली में 5 स्टेमेंस ये कॉमन कैरेक्टर है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, मगर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इवोल्यूशन में एक स्टेमेंस निकल गया बताते हैं, ये एक स्टेमेंस नहीं बताते हैं। मगर जैसे हमारे पूंछ का थोड़ा सा सिंबल आज भी हमारे में बचा हुआ है, हमारे स्किन पर जो बाल थे उसका थोड़ा अंश आज भी हमारे स्किन पर बाल बताता है, वैसा ही यहाँ पर जो स्टेमेन निकल गया था उसका जो अंश है वो यहाँ पर अगर हम सेक्शन लेते हैं ओवरी के नीचे, तो वहाँ पर हमें 5 स्टेमेन्स का एविडेंस मिलता है। जब 5 स्टेमेन्स का एविडेंस मिलता है या
स्टैमेन्स का एविडेंस मिलता है मगर वो स्टैमेन ऊपर दिखाई नहीं देता, उस कंडीशन को कहा जाता है स्टैमिनोड। यानी स्टैमेन्स ओरिजिनली तो है मगर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, इसे कहा जाता है स्टैमिनोड। और स्टैमिनोड की कंडीशन सोलेनेसी फैमिली के कुछ प्लांट्स में दिखाई देती है। अदरवाइज यहाँ पर टोटल 5 स्टैमेन्स है। अब यहाँ पर स्टैमेन्स में और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। ये स्टैमेन्स जो होते हैं, ये जितने करोला के लोब्स है, यानी जितने करोला के नंबर है उतने स्टैमेन्स यहाँ दिखाई देते हैं, और ये स्टैमेन्स करोला को अटैच होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो स्केच है सेकंड वाला, यहाँ पर ये स्टैमेन्स यहाँ तक आए हुए हैं, और नीचे के साइड में जो फिलामेंट होती है, ये फिलामेंट करोला को अटैच होती है। और ऐसा जब एंड्रोशियम ये करोला के ऊपर अगर अटैच होता है तो उसे इपीपेटैलस कंडीशन कहा जाता है। अब ये जो वर्ड है ये 2 लफ्जों से बना हुआ है, इपी और पेटैलस। इपी का मतलब होता है ऊपर और पेटल्स का मतलब होता है करोला। यानी करोला के ऊपर पेटल्स अटैच होते हैं, इसलिए इसे इपी पेटैलस कंडीशन कहा जाता है। और ये करोला लोब को अल्टरनेट होते हैं, यानी जैसे लीव्स में फाइलोटैक्सी होती है जहाँ पर लीव्स की अरेंजमेंट देखी जाती है, वैसी यहाँ पर यहाँ करोला एंड्रोशियम की अटैचमेंट देखी जाती है। तो ये करोला लोब से अल्टरनेट होते हैं, यानी करोला लोब को अल्टरनेट पोजीशन में होते हैं। ये हुआ एंड्रोशियम के बारे में। अब एंड्रोशियम को हम लोग जब फ्लोरल फॉर्मूला में डिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एंड्रोशियम का सिंबल ए, फिर उसके बाद में 5 लिखेंगे। एंड्रोशियम का फिगर है ये, 5 स्टैमेन्स प्रेजेंट है, इसलिए इसे 5 लिखेंगे। और यहाँ पर इपीपेटैलस कंडीशन प्रेजेंट होने के वजह से एंड्रोशियम के ऊपर से करोला के ऊपर तक हम लोग एक आर्क बनाएंगे, एक सिंबल बनाएंगे। वो आर्क जो बताएगा कि इपीपेटैलस कंडीशन एंड्रोशियम में प्रेजेंट होती है। ये हुआ एंड्रोशियम के बारे में। अब हम बढ़ते हैं। हाँ, एंड्रोशियम में और एक कैरेक्टर होता है, जो टोटल 5 स्टैमेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये 5 स्टैमेन्स में इनकी जो फिलामेंट होती है, ये फिलामेंट अनइक्वल साइज की होती है। अब यहाँ पर ये जो फ्लावर यहाँ पर बताया गया है, ये कौन सा फ्लावर है आप लोग बता सकते हैं मुझे? मैंने आप लोगों को बताया था धतूरा में हम लोगों ने 3 प्रकार लिखे हुए हैं। एक सफेद धतूरा है, दूसरा भी सफेद है मगर दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन है। तो हमने जो सफेद धतूरा होता है उसके 2 प्रकार लिखे हुए हैं, एक धतूरा स्ट्रोमोनियम और एक धतूरा इनॉक्सिया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं धतूरा में जिनमें जामुनी कलर के करोला होता है। तो ये जामुनी कलर का करोला जो होता है, इसे धतूरा का अलग नाम दिया था हमने, बता सकते हैं आप लोग? अरे आप लोग भूल जाते हैं। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, रोज एक बॉटेनिकल नाम याद करने का। आप 365 दिनों में 365 नाम याद कर लोगे। अरे सर जी, वो खाना भूल जाते हैं, आज खाया क्या खाया। चलो आज मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ, इसके बाद में नेक्स्ट टाइम मैं हेल्प नहीं करूंगा। इसे कहते हैं धतूरा मेटल। हमने इसका कॉमन नेम लिखा था काला धोतरा या काला धतूरा। तो ये काला धतूरा जो होता है ना, इसमें भी टोटल 5 स्टैमेन्स होते हैं। मगर यहाँ पर आप लोग, ये फोटो बहुत क्लियर है, आप लोग अगर देख पाओगे तो इसमें 2 स्टैमेन्स ऊपर की ओर आए हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 उससे छोटे हैं।
यानी दो अलग अलग साइज की फिलामेंट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये दो अलग अलग साइज की जो फिलामेंट होती है ना, तो कैरेक्टर स्टडी करते वक्त मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बताया था, डाइडिनेमस कंडीशन। डाई का मतलब होता है दो, और अलग अलग वेरिएबल लेंथ की होने की वजह से ये डाइडिनेमस कंडीशन कहा जाती है इसे। यानी सोलेनेसी फैमिली में टोटल 5 स्टैमेंस प्रेजेंट होते हैं, और 5 स्टैमेंस में से दो दो स्टैमेंस की फिलामेंट की लेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। दो स्टैमेंस की फिलामेंट सबसे ऊंची होंगी, उससे थोड़ी सी कम साइज की दो फिलामेंट होंगी स्टैमेंस की। यानी दो अलग अलग साइज में यहाँ पर फिलामेंट्स होते हैं, इसलिए इसे डाइडिनेमस कंडीशन कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक लंबा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टैमेंस यूजुअली नॉट इक्वल इन साइज। अब एग्जाम में आप लोगों को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लिखना है डाइडिनेमस, यानी पूरा सेंटेंस एक ही छोटे से लफ्ज में सीमित हो गया, डाइडिनेमस कंडीशन इसमें प्रेजेंट है ऐसा। इसके जो एंथर्स होते हैं ये दो सेल्स से बने हुए होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 और 2 ऐसे दो कंपार्टमेंट्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी दो कंपार्टमेंट से या दो सेल्स से बना हुआ यह एंथर होता है, जिसे हम लोगों ने देखा था डाइथिकस नाम दिया था। अगर एक ही कंपार्टमेंट से बना हुआ होता तो हम उसे मोनोथिकस नाम देते थे। यहाँ पर सोलेनेसी में मगर डाइथिकस कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर इंट्रोज कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब धतूरा का या मोस्ट ऑफ फ्लावर्स सोलेनेसी के अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये करोला का पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है, करोला की ट्यूब दिखाई दे रही है, और इसके अंदर यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। और जिस वक्त एंड्रोशियम ये करोला ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी अंदर छुपा हुआ होता है, उसे कंडीशन को कहा जाता है इंट्रोज कंडीशन। अगर यही करोला के बाहर अगर एंड्रोशियम आता है तो उसे एक्सट्रोज कंडीशन कहा जाता है। जैसे मालवेसी फैमिली में हमने स्टडी किया था हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस फ्लावर में, जिसे हम लोग जासूद का फ्लावर कहते हैं, उसमें एंड्रोशियम बाहर आ गया था तो उसे एक्सट्रोज कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पर एंड्रोशियम अंदर होने के वजह से इसे इंट्रोज कंडीशन कहा जाएगा। अब ये जो फ्लावर होता है इसकी जो ओहरी होती है, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को गौर से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये नीचे के साइड में ओहरी प्रेजेंट है, थोड़ा सा गौर से देखिए। और ये जो ओहरी है, ये ओहरी के बीच में एक छोटी सी हल्की पतली सी लाइन दिखाई देती है, बराबर। यानी यहाँ पर ये दो ओहरी हमें दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसे बायकार्पेलिटी कहते हैं। बाय का मतलब होता है दो और कार्पेल का मतलब होता है गाइनोशियम। तो यहाँ पर दो गाइनोशियम प्रेजेंट है, गौर से देखिए आप, दिखाई देता है। और ये दो गाइनोशियम जो है ये आपस में यूनाइटेड है, यहाँ पर कहीं भी बीच में गैप नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। अब ये जो बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन की ओहरी यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो ये ओहरी के नीचे हल्का सा एक डिस्क के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हल्का सा ब्राउनिश कलर का है। ये जो डिस्क प्रेजेंट होती है ना, ये इसे थैलेमस कहा जाता है। और ये डिस्क शेप्ड थैलेमस यहाँ पर गाइनोशियम के नीचे यानी ओहरी के नीचे प्रेजेंट होती है। ये फैमिली का आइडेंटिकल कैरेक्टर होता है। यूजुअली हाइपोगाइनस डिस्क प्रेजेंट विच इज क्वाइट अपीरेंट, यानी ये फैमिली का अपीरेंट कैरेक्टर बनता है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर बनता है। डिस्क शेप्ड थैलेमस इज प्रेजेंट बिलो दी ओहरी। अब हम लोग बढ़ते हैं गाइनोशियम की ओर। गाइनोशियम इसका हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो गाइनोशियम होता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ऐसा गाइनोशियम यहाँ पर प्रेजेंट है। ये किस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ।
अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये ओवरी प्रेजेंट है, ये एक्चुअल फ्लावर का एलएस है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ये एलएस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंटर में गाइनोशियम प्रेजेंट है। गाइनोशियम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये ऊपर की ओर जो है ये स्टिग्मा कहलाता है, बीच में का जो है ये स्टाइल कहलाता है, और नीचे का जो राउंडेड पोर्शन होता है इसे ओवरी कहा जाता है। अब ये जो ओवरी होती है, ये ओवरी में कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर 2 कार्पेल्स प्रेजेंट है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 चेम्बर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे बाइकार्पेलरी कहा जाता है। अब ये बाइकार्पेलरी कंडीशन में ये दोनों कार्पेल्स आपस में यूनाइट हो रहे हैं, दोनों कार्पेल्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसे सिनकार्पस कहा जाएगा। यानी ओवरी को डिस्क्राइब करते वक्त हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। अब ये बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन में ओवरी की पोजीशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये ओवरी के नीचे से कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम तीनों पार्ट नीचे से आते हुए दिखाई देते हैं। तो नीचे से आ रहे इसलिए इसे सुपीरियर ओवरी या हाइपोगाइनस फ्लावर कहेंगे। तो अब ये जो ओवरी है बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर, ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। मालवेसी फैमिली में हमने क्या देखा था, पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर कंडीशन थी, वहां पर चेंबर्स बहुत ज्यादा थे, 5 से ज्यादा थे। यहाँ पर 2 ही चेंबर है, इसलिए इसे बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर कंडीशन कहा जाएगा। इसलिए बाइकार्पेलरी यानी 2 कार्पेल्स होने की वजह से इसे बाइकार्पेलिटी में डाला गया है। ये ओवरी की पोजीशन है। अब ओवरी के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसका जो प्लासेंटेशन होता है और चेंबर्स होते हैं ये किस तरीके से होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि पीछे भी हमने देखा पिछले स्लाइड में कि टोटल 2 चेंबर्स होते हैं यहाँ पर, और दोनों चेंबर्स होने की वजह से इसे बाइकार्पेलिटी कहा जाता है। अब ये दोनों चेंबर्स में बीच में जो प्लासेंटेशन होता है, ये बीच में प्लासेंटेशन के ऊपर ओव्यूल्स अराइज होते हैं, इसलिए इसे एक्साइल प्लासेंटेशन कहा जाता है। अब ये एक्साइल प्लासेंटेशन जो होता है, ये एक्साइल प्लासेंटेशन के ऊपर इनडेफिनाइट नंबर के यानी बहुत सारे ओव्यूल्स यहाँ पर सेंट्रल प्लासेंटा को अटैच होते हैं। अब यहाँ पर बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, प्लासेंटेशन एक्साइल है। मैं एक लफ्ज आगे आगे बढ़ते जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको बाइकार्पेलरी बताया, फिर सिनकार्पस बताया, फिर सुपीरियर बताया। अब यहाँ पर प्लासेंटेशन एक्साइल होता है, यानी ओवरी को डिस्क्राइब करते वक्त हमें कैसा लिखना है, सोलेनेसी में बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर विथ एक्साइल प्लासेंटेशन। अब मैं और एक लफ्ज आगे बढ़ूंगा, इन एक्साइल प्लासेंटेशन इन ईच चेंबर द नंबर ऑफ ओव्यूल्स आर इंडेफिनाइट। हर चेंबर में ओव्यूल की जो संख्या है, नंबर है, ये इंडेफिनाइट है यानी अनकाउंटेबल है। अब ओवरी पूरे सेंटेंस में कैसे आएंगी, बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर विथ एक्साइल प्लासेंटेशन एंड नंबर ऑफ ओव्यूल्स इंडेफिनाइट इन ईच चेंबर। अब ये हुआ ओवरी का डिस्क्रिप्शन। अब सोलेनेसी फैमिली में ओवरी में एक बहुत अलग सा कैरेक्टर दिखाई देता है। नॉर्मली ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं ये थोड़ी सी तिरछी नजर आ रही है, ये सीधी होने चाहिए थी, सीधी होती तो अलग दिखाई देती, मगर यहाँ पर फ्लावर में ओवरी थोड़ा सा टर्न होती है। जैसी जैसी डेवलपमेंट होती है ना, वैसी वैसी ओवरी थोड़ा सा टर्न करती है, और टर्न होने के वजह से यहाँ पर हमारी ये जो स्केच है, ये स्केच भी हल्का सा टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो टर्न हुआ स्केच है इसे कहा जाता है ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड, यानी हल्की सी तिरछी होती है ओवरी, इसे ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी कहा जाता है। अब मैंने और एक लफ्ज ऐड किया, मैं फिर से रिपीट करता हूं,
bicarpellary syncarpus superior with exile placentation and indefinite ovules in each locule, ovary obliquely placed. ये हुआ ओवरी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब ये फैमिली में जैसा जैसा हम लोग स्टडी करते हैं या जैसा जैसा हम लोग फ्लावर्स से फ्रूट बनने की जो प्रोसेस होती है, इसे अगर स्टडी करते हैं तो एक बहुत अलग कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई देता है। अब पहले स्केच में आप लोग देख रहे हैं कि ओवरी में 2 चेम्बर्स प्रेजेंट है और 2 चेम्बर प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग कहते हैं कि ओवरी बाइकार्पेलेटी है। कब से मैं यही बताते जा रहा हूं आप लोगों को कि बाइकार्पेलेटी ओवरी, बाइकार्पेलेटी ओवरी, बाइकार्पेलेटी ओवरी, यानी बाइकार्पेलरी ओवरी का मतलब होता है 2 चेम्बर। मगर उसी समय दूसरे फोटोग्राफ में मैं आपको बता रहा हूं जिसमें 4 चेम्बर दिखाई देते हैं यहाँ पर। अब सोलेनेसी का मेन कैरेक्टर है बाइकार्पेलरी ओवरी और उसी समय में दूसरे फोटोग्राफ में मैं आपको ओवरी बता रहा हूं जिसमें 4 चेम्बर है। तो ये कैसा पॉसिबल होता है? तो नेचर में कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें होते रहती है जो हमारे समझ के बाहर होती है। ये जो चीज है यहाँ पर, ये ओवरी ऑलरेडी बाइकार्पेलरी ही है, इसमें 2 ही चेम्बर है। मगर क्या होता है, जैसा जैसा ओवरी डेवलप होते जाती है तो ये जो बीच में का प्लेसेंटा होता है, ये बीच में के प्लेसेंटा में एक फाल्स लाइन डेवलप होती है दोनों ओर। फाल्स यानी झूठी लाइन, सूडो लाइन या झूठ मूठ की लाइन। ये जो सूडो लाइन होती है या फाल्स लाइन होती है, ये फाल्स लाइन को कहा जाता है सेप्टम। और ये सेप्टम यहाँ पर डेवलप होने के वजह से क्या होता है, ये जो 2 चेम्बर की हो रही थी वो 4 चेम्बर की दिखाई देने लगती है। यानी अब यहाँ पर ये फिगर में जैसी कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पर फॉर्म होती है। फाल्स सेप्टम डेवलपमेंट की वजह से टोटल 4 चेम्बर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये फाल्स सेप्टम के डेवलपमेंट के वजह से ये जो लोग नया नया फैमिली का स्टडी करते हैं ना, तो वो इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं कि फ्लावर का सेक्शन लिया पहले तो उसमें 2 चेम्बर्स दिखाई दिए, और फ्लावर मैच्योर फ्लावर का सेक्शन लिया तो उसमें 4 सेक्शंस दिखाई दिए। सर ने कहा था ये तो बाइकार्पेलिटी में है तो इसमें 2 ही चेम्बर होना चाहिए, मगर इसमें 4 चेम्बर दिखाई दे रहे हैं, तो इसे सोलेनेसी कहा जाए या दूसरा कुछ कहा जाए, ये कंफ्यूजन नए बच्चों में बहुत होता है। मगर इसका साइंटिफिक रीजन होता है कि जैसे जैसे फ्रूट डेवलप होता है, यहाँ पर एक फाल्स लाइन डेवलप होती है। ये फाल्स लाइन के वजह से यहाँ पर 4 चेम्बर दिखाई देते हैं, मगर जैसा फ्रूट फॉर्मेशन शुरू होता है ये फाल्स लाइन फिर से डिसअपियर हो जाती है और ओवरी फिर से बाइलॉक्यूलर या बाइकार्पेलिटी में कन्वर्ट होती है। ये सिर्फ एक टेम्पररी स्टेट होता है। ये टेम्पररी स्टेट में यहाँ पर बाइकार्पेलिटी से 4 चेम्बर्स दिखाई देते हैं और 4 चेम्बर की वजह से कंफ्यूजन का स्टेट होता है। अब ओवरी को एक्सप्लेन करते वक्त हम प्रॉपरली कैसा एक्सप्लेन करेंगे, मैंने पहले कहा था ओवरी बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपेरियर with exile placentation, many ovules in each locule। अब एक लफ्ज और ऐड होगा, ओवरी बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपेरियर with exile placentation, indefinite ovules in each locule, and due to development of false septa, ovary becomes 4 chambered। ओके, ये हुआ ओवरी का पूरा डिस्क्रिप्शन। मैं कल आपको लेक्चर शुरू करने से पहले गाइनोशियम कैसा डिस्क्राइब करते हैं ये पूछूंगा, तो आप लोगों का सेंटेंस होगा ओवरी बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपेरियर, bicarpellary syncarpus superior with exile placentation, indefinite number of ovule in each locule,
ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ false septa, ovary becomes 4-chambered. अब इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है और मेनी ओवल्स इन ईच लॉक्यूल होता है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया। कार्पेल्स ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया। हल्का सा ट्विस्ट होता है ओवरी में, ये ट्विस्ट के वजह से ओवरी तिरछी दिखाई देती है और ये ऑब्लिकली प्लेस्ड फ्लावर या ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी कहा जाता है। अब आप फ्लोरल डायग्राम जब निकालोगे तो फ्लोरल डायग्राम में आपका सेंटर में जो ओवरी आपको निकालनी है, तो ये ओवरी आप लोगों को तिरछी ही निकालना पड़ेंगी सोलेनेसी फैमिली में। अगर आपके फ्लोरल डायग्राम में, सोलेनेसी के फ्लोरल डायग्राम में ओवरी आप तिरछी नहीं निकालते हो और पूरी फिगर बराबर निकालते हो, तो भी एग्जामिनर आपको 0 मार्क देगा, क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर है ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड। और यही अगर अपने फ्लोरल डायग्राम में नहीं दिखा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको फैमिली ही समझ में नहीं आई है, ये सिर्फ निकालने का इसलिए फ्लोरल फॉर्मूला पर से फ्लोरल डायग्राम निकाल रहा है। ये इसका जो टिपिकल कैरेक्टर है, ये टिपिकल कैरेक्टर हमारे फ्लोरल डायग्राम में दिखाई देना ही चाहिए, अदरवाइज आपको फिर 0 मार्क मिलेंगे। अब ये गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम को हम फ्लोरल फॉर्मूला में किस तरीके से लिखेंगे? गाइनोशियम का जी लिखेंगे हम लोग। इनडेफिनाइट ओव्यूल्स है तो इनडेफिनाइट सिंबल करेंगे हम लोग, और गाइनोशियम सुपेरियर है यानी ओवरी सुपेरियर है तो गाइनोशियम के जी सिंबल के नीचे एक छोटी सी लाइन लगाएंगे हम लोग, जो ओवरी सुपेरियर है ऐसा बताता है। ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। हमने फ्लोरल फॉर्मूला में क्या क्या बोले थे? सबसे पहले तो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल, फिर उसके बाद में बाइसेक्सुअल का सिंबल, फिर उसके बाद में कैलिक्स का के, कैलिक्स 5 है, यूनाइटेड है तो 5 को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। फिर करोला का सी, करोला 5 है, यूनाइटेड है तो 5 को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। एंड और करोला और एंड उसके बाद में एंड्रोशियम का ए, एंड्रोशियम 5 है तो वहां पर हम लोग 5 का सिंबल रखेंगे और एंड्रोशियम और करोला के ऊपर एक आर्क बनाएंगे क्योंकि इपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट है। ऐसा गाइनोशियम में हम लोग इंडेफिनाइट सिंबल रखेंगे और गाइनोशियम के नीचे एक छोटी सी लाइन खींचेंगे। ये हुआ हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। अब गाइनोशियम में हम लोगों ने ओवरी देखे, ओवरी के बाद हम लोग देखेंगे स्टाइल और स्टिग्मा कैसा होता है ये फैमिली में। यहाँ पर ओवरी के ऊपर जो स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है वो हम लोग देखेंगे। ओवरी के ऊपर होता है स्टाइल और स्टिग्मा। यहाँ पर स्टाइल सिंगल होता है और स्टिग्मा जो होता है ये कैपिटेट या बायलोब्ड स्टिग्मा होता है। ये कैसा होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर ये जो स्टाइल है, ओवरी के ऊपर का पोर्शन जो है, ये ओवरी के ऊपर के पोर्शन को जो स्टाइल कहा जाता है, यहाँ पर सिंपल स्टाइल प्रेजेंट होता है। और ये सिंपल स्टाइल के ऊपर ये जो स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा हर प्लांट में अलग अलग शेप में होता है। यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली में ये जो शेप हम लोग देख रहे हैं, ये शेप को बायलोब्ड स्टिग्मा कहा जाता है। बाय का मतलब होता है 2 और 2 लोब्स है। आप गौर से देखोगे तो लेफ्ट साइड में एक और राइट साइड में एक, ऐसे 2 लोब्स छोटे छोटे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये 2 लोब्स से बना है इसलिए इसे बायलोब्ड स्टिग्मा कहेंगे। ये स्टिग्मा बहुत ही क्लियर होता है और ये फ्लावर काफी बड़े बड़े होते हैं तो ये हम इजीली स्टडी कर सकते हैं ये सब कैरेक्टर। तो यहाँ पर स्टिग्मा सिंगल है, सिंपल है, और स्टाइल सिंगल है और सिंपल है, और स्टिग्मा मोस्ट ऑफ प्लांट में यहाँ पर बायलोब्ड होता है। ये स्टिग्मा का कैरेक्टर हुआ। फिर उसके बाद आता है फ्रूट। मेरे ख्याल से धतूरा या धतूरा के जैसे
सोलेनेसी के बहुत सारे फ्रूट्स आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि टोमेटो आप लोगों ने देखा है, चिली आप लोगों ने देखा हुआ है, फिर एग प्लांट यानी बैंगन आप लोगों ने देखा हुआ है, धतूरा आप लोगों ने देखा होगा। ये जो सब इसके फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स को कहा जाता है सेप्टिसाइडल कैप्सूल। यानी सेप्टिसाइडल कैप्सूल का मतलब होता है, अब मैंने थोड़े समय पहले आप लोगों को ओहरी एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि ओहरी बाइकार्पेलरी होती है और बीच में सेप्टम डेवलप होने की वजह से 4 चेंबर वाली दिखाई देती है। अब नेचर ये क्यों करता है, इसका जवाब हमें यहाँ पर मिलेगा। ये जो पहला फोटोग्राफ है ना, ये धतूरा का फ्रूट ओपन हुआ है, यानी फूटा हुआ फ्रूट है। फूटा हुआ फ्रूट को अंग्रेजी में कहा जाता है डिहाइस्ड फ्रूट। अब ये डिहाइस्ड फ्रूट जो है, इसको आप गौर से अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4 चेंबर्स दिखाई देंगे। ये 4 चेंबर में एक चेंबर थोड़ा सा मोटा है और एक चेंबर की बीच में की लाइन हल्की सी पतली है। यानी ये बीच वाली जो मोटी लाइन है, ये मोटा स्ट्रक्चर है, ये ओरिजिनल ओहरी का बायलॉक्यूलर सेक्शन है। मगर डेवलपमेंट के बीच में यहाँ पर ये दूसरी छोटी लाइन डेवलप हुई जिसे हमने सेप्टम कहा, और ये लाइन डेवलप होने के वजह से यहाँ पर टोटल 4 चेंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये 4 चेंबर्स जो होते हैं, ये 4 चेंबर्स का फ्रूट बनता है, और जैसे ही फ्रूट मैच्योर होता है तो ये चारों चेंबर्स आपस में से अलग होते हैं। जैसे एक छोटा सा बॉल होता है, और ये बॉल को अगर बीच में से 2 बार कट करे तो उसके 4 हिस्से बनते हैं। हम घर में जैसा नींबू कट करते हैं, नींबू को अगर खड़ा कट करे 2 बार तो उसमें से 4 हिस्से बनते हैं, वो आपस में से अलग अलग दूर होते हैं। वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर बीच में के सेप्टम्स वैसे ही रहते हैं, और ये बाहर के जो ओहरी वॉल होती है या फ्रूट वॉल होती है, ये आपस में से दूर जाते हैं, जिसको फ्रूट को फूटना कहते हैं, और इसमें से फिर सीड्स बाहर निकलती है। ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें बाइकार्पेलरी ओहरी होती है और बीच में एक सेप्टम डेवलप होता है, सेप्टम डेवलप होने के वजह से 4 चेंबर्ड ओहरी दिखाई देती है, और ये फ्रूट फूटते वक्त 4 अलग अलग हिस्सों में बंटता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 ऐसे 4 हिस्सों में फ्रूट फूटा और इसकी सीड्स बाहर निकल रही है। ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं इन्हें सेप्टिसाइडल कैप्सूल कहा जाता है, और ये सेप्टिसाइडल कैप्सूल ये फैमिली में बहुत कॉमनली मिलता है, या तो फिर बेरी टाइप का फ्रूट होता है। जैसे कि टोमेटो का फ्रूट जो है ये बेरी टाइप का फ्रूट है, या ब्रिंजल का जो फ्रूट है ये बेरी टाइप का फ्रूट होता है। यानी सोलेनेसी फैमिली में बेरी या सेप्टिसाइडल कैप्सूल ऐसे 2 टाइप के फ्रूट मिलते हैं। यहाँ पर धतूरा के अलग अलग वैरायटी। हाँ बोलो। केमिस्ट्री का लेक्चर है अब हमारा, वो शुरू हो गया है। ओहो, अरे बेटा मेरे को याद करा देना चाहिए था ना, मैं भूल गया था। चलो हम लोग जल्दी से वाइंड अप करते हैं, इसका अगला हिस्सा हम लोग कल देखेंगे। ओके, मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।